نہ جانے رب نے کتنی آیتوں کو نازل فرمایا، اور جن کے بارے میں میرے آقا نے یہ فرمایا اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد عمر فاروق اعظم نبی ہوتا۔ اب اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی کہ جن کے مشورے کے مطابق رب تعالیٰ اپنے کلام میں ان کو جگہ دیتا اور ان کے مشورے کے مطابق رب تعالیٰ آیتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرات ان کے چہرے پہ خوشی ہے، کیا وہ علم نہیں رکھتے تھے؟ ارے جس کا مقام یہ ہو کہ جہاں عمر ہو وہاں شیطان نہ ہو، جہاں عمر ہو وہاں شیطان بھاگ جائے، ان کے پاس کیا علم نہیں تھا؟ یہ حضرت عثمان غنی کے پاس علم نہ تھا، یہ حضرت علی کے پاس علم نہ تھا، یا جو اور صحابہ کرام تھے ان کے پاس علم نہیں تھا۔ عقل صلاحیت اچھی تھی، علمی صلاحیت بھی اچھی تھی۔ حضرات میں کہنا یہ چاہتا ہوں جہاں سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے وہاں حضرت صدیق اکبر رو رہے تھے۔ پوچھا اے صدیق اکبر آج تو رونے کا دن نہیں، آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے۔ آج کا جو دن ہے تمام عیدوں سے افضل ہے۔ آج رب نے دین کو کامل کر دیا اور رب فرما رہا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا۔ تمہارے سے مراد بات یہ ہے جو وحی الہی ہے، وحی الہی ہے، اس سے ہم ہر بات کو نہیں سمجھتے۔ تمہارے دین سے جو مراد ہے، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کی بات ہے اسی کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے۔ جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی نہیں سوچتی تو پہلے تو کہتے ہیں کہ ہم پہلے اپنے امام کی مانیں گے، جو ہمارا امام کہے گا پہلے اس کی مانیں گے۔ وہاں جب ان کا مسئلہ فیل ہو جاتا ہے مجھے تمہارا امام بولتا ہے کہاں سے؟ یہ حدیث اور قرآن سے بولتا ہے، حدیث اور قرآن سے بولتا ہے۔ حدیث اور قرآن پر عبور ہر کسی کو حاصل نہیں ہے، ہر کسی کو حاصل نہیں ہے حضرات۔ پر وہ ادھر ادھر کب آتے ہیں کہ بعد یہ جواب کیا دے، بعد وہ سوچتے ہیں کہ نہیں حدیث سے ہم بات کرتے ہیں، اور جب وہ بات حدیث میں ملتی ہے جو ان کی بات پکڑ میں آتی ہے سوچتے ہم صرف وحی الہی کو ہی مان دیں، قرآن پاک کو ہی مان دیں۔ تو حضرات بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں تو ملتی ہے اور اس کی حقیقت جو واضح طور پر نکلی وہ حدیث مصطفیٰ میں ملتی ہے، حدیث مصطفیٰ میں ملتی ہے۔ حضرات تو جو تمہارے دین کو تمہارے لیے رب نے جو کامل کیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر مہندی جو لگانا ہے مرد کے لیے حرام ہے، مہندی لگانا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے حلال ہے، جائز ہے، پر ایسی بھی مہندی نہ لگائی جائے جسے دیکھ کر دوسرے لوگ غلط خیال پیدا نہ کریں۔ آج ہماری گھر کی عورتوں کا یہی حال ہے، مہندی تو کبھی بہت سے لوگ بیوٹی پارلر میں جا کے لگواتے ہیں، کچھ تو شرم کرو، بیوٹی پارلر میں جا کے لگوائی جاتی ہے، یہ ہمیں یہ بنائی جاتی ہے۔ ارے جو چہرہ رب نے تمہیں دیا ہے، اور بہت سارے میک اپ کرنے کے ساتھ وہ سامان گھر میں ہے تو باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ بہرحال بات حضرات دور جا رہی ہے، کہنے کا مقصد یہ حضرات کی مہندی جو ہے عورتوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے، مردوں کے لیے حلال۔ ہاں اس کے بعد جب یہ آپ نے حکم فرمایا اللہ کے اس کے بعد کیا دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی لگا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پر حضرات مہندی ہاتھوں پہ نہیں تھی، مہندی آپ کے سر پہ، سر کے بالوں پہ تھی اور داڑھی پہ۔ بات کو سمجھیے، یعنی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اللہ کے ذل فرماتے ہیں کہ فرشتے جب حضرت عثمان کو دیکھتے ہیں تو شرما کر اپنے سروں کو نیچے کر دیتے ہیں، ان کا مقام یہ ہے۔
आप यानी कि मेहंदी लगा कर आए बालों पर, सर के बाल पर और दाढ़ी पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा आपने तबस्सुम फरमाया। जब आप उस पे राजी हो गए तो वो चीज जो है दीन में शामिल हो गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो भी अदा है वो सब की सब शरीयत है, सुन्नत है, जो भी अदा है। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है कि आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया। यानी कुरान तो कहता है कि नमाज पढ़ो, पर ये नहीं कहता कि कैसे पढ़ो। कुरान ये तो कहता है कि ज़कात दो, पर ये नहीं कहता है कौन कौन दे। कुरान ये तो कहता है कि इताअत करो, पर ये नहीं बताता किस तरह से की जाए, उसका किस हद तक की जाए, उस इताअत की जो है हद कहाँ तक है। ये सारी चीजें जो मिलती है मेरे आका से मिलती है, हदीस मुस्तफा से मिलती है। हज़रात अगर हम अब ये आसान है क्या कुरान के अंदर है? बहुत सारे मामलात हैं कुरान के अंदर है, नहीं, इशारा मिलता है, पर जो अदा करने का तरीका है कि नमाज किस तरह से पढ़ी जाए, ज़कात किस तरह से दी जाए, मोहब्बत किस तरह से दी जाए, माँ बाप से उनकी फर्माबरदारी किस तरह से की जाए, कुरान बता रहा है, पर किस तरह से की जाए ये नहीं। तो हज़रात कहने का मकसद ये है, इसलिए उनके रब को मालूम है, तो अल्लाहुल गुयूब है। मेरे आका ने जिस तरह से कयाम किया, आप खड़े हो गए, वो हमारे लिए कयाम बना, आप झुके हमारे लिए रुकू बना, आपने रब को सजदा किया, हमारे लिए सजदा बन गया। इसलिए तो कहा जाता है कि आपकी हर बात दीन और तो इसलिए अगर इसलिए तो फरमा रहा कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, अब किसी और दीन की जरूरत नहीं है। हज़रात बात बहुत दूर चली गई, उनमें सब के सब सहाबाई किराम के चेहरे खिले हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आंखों से आंसू जारी हैं और सहाबाई किराम पुकार उठते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक, आज रोने की वजह तो नहीं है, आज रोने की, आज आप रो रहे हो, आज रोने का दिन नहीं, आज तो खुशी मनाने का दिन है। आज रब ने दीन को कामिल कर दिया, आज रोने की क्या वजह है? आपने फरमाया बात सही है, दीन कामिल होने की खुशी मुझे भी है, दीन कामिल होने की खुशी मुझे भी है, पर मेरी आंखों में जो अश्क है इसकी वजह कुछ और, मैं रो रहा हूं, इसकी वजह कुछ और है। पूछा गया मामला क्या है? कहा कि मामला ये है जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देखते हो। कहा कि आखिर बात तो बताओ, वो यारे खान, वो सिद्दीक अकबर, इनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि नबियों के बाद तमाम मखलूक में अगर कोई मकाम और मर्तबे वाला कोई है तो वो सिद्दीक अकबर की जात है। हर बशर नबियों के बाद जो मकाम और मर्तबा है मेरे सिद्दीक अकबर का है। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते रोने की वजह कुछ और है। पूछते क्या है? कहा कि वजह ये है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत आपको हमें सुनाई कि आज रब ने दीन को कामिल कर दिया, तो मुझे खुशी तो इस बात की है कि आज रब ने दीन को कामिल कर दिया। रोने आपने दूसरी बात पर गौर नहीं किया, क्योंकि मैं रोया इसलिए खुशी तो मुझे है, पर रोया इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ और ये समझता हूँ कि नबी जो है दुनिया पे जब तक रहते हैं, जब तक तबलीग पूरी न हो, और जब नबी चाहे वो किसी की 1000 साल की उम्र हुई, किसी की 300 बरस की, किसी की 200 बरस की, यानी जब तक तबलीग मुकम्मल नहीं हुई वो नबी हयात रहा, और जब तबलीग पूरी हो गई, काम पूरा हो गया, तो वो फिर अपने रब से जा मिला। तो मुझे खुशी इस बात की है कि आज रब ने दीन को कामिल कर दिया। रोना इसलिए आ रहा
अब अल्लाह के रसूल से जुदा होता हूँ। क्योंकि आप विशाल फरमाए तो जो आंखें मुझे मालूम है कि जब मुझे अगर भूख लगती है तो मैं खाना नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल के चेहरे का दीदार कर लेता हूँ, मेरा पेट भर जाता है। प्यार की शिद्दत जब मुझे तड़प आती है मैं अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखता हूँ, वो शिद्दत खत्म हो जाती है। और जब काम पूरा हो गया, दीन कामिल हो गया, तो मैं ये समझता हूँ और ये जान गया हूँ कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द हमारे दरमियान से जो है इस दुनिया में फानी से विशाल हो जाए, जुदा हो जाए। मैं फिर किसी को मोहब्बत है तो मोहब्बत ऐसी हो, जज्बा ऐसा हो, अकीदत ऐसी हो। और जब जज्बा और मोहब्बत जब किसी से होती है तो हजरात मोहब्बत का ये मिजाज है, उस पर कुर्बान करने के लिए ना वो अपनी दौलत को देखता है और ना ही अपनी औलाद को देखता है, वो परवाह नहीं करता। बस इरादा यह होता है किसी भी तरह से मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए, मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए। तो हजरात, तो ये जो आयत, ये तो बयान की तरफ चले, अब असल वजह की तरफ आते हैं। रब ने जब दीन को कामिल कर दिया, दीन को मुकम्मल कर दिया, तो आज बहुत सारे फिरके पाए जाते हैं, आज बहुत सारे अकायद पाए जाते हैं, आज बहुत सारे मसलक पाए जाते हैं। हजरात ने दीन को मुकम्मल कर दिया। जो कुरान देवबंदी पढ़ते हैं वो बरेलवी पढ़ते हैं, सुन्नी भी पढ़ते हैं, कादरी पढ़ते हैं, रिजवी पढ़ते हैं, अशरफी भी पढ़ते हैं, कादियानी भी पढ़ते हैं, या इसके अलावा शिया भी पढ़ते हैं, गैर मुकल्लिद भी पढ़ते हैं, जितने भी कलमा वो है सब पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आखिर उसके बाद हदीसें वो भी दिखाते हैं। दूर पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वसल्लम सलातो वसलाम अलैहि रसूलुल्लाह। तो हज़रात, कहने का मकसद ये है, आज जितने भी अकायद पाए जाते हैं, आज जितने भी मसलक पाए जाते हैं, उसी कुरान को पढ़ते हैं, उसी की तिलावत भी करते हैं, उसके बावजूद जो है आज इतने अकीदे क्यों पाए जाते हैं, आज इतने मसलक क्यों पाए जाते हैं? जब सब कुछ रब ने ये बता दिया, अपने नबी की मौजूदगी में यह फरमा दिया, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया गया है, तो आज हनफी की ज़रूरत क्या है, आज मालिकी की ज़रूरत क्या है, आज जो है शाफी की ज़रूरत क्या है, आज जो है हम्बली की ज़रूरत क्या है, या आज और गैर अकायद की ज़रूरत क्या है? हर अकायद वाला अपने आप को जो है हक पर बताता है। अगर शिया भी है जिसे हम खैरुल इस्लाम समझते हैं, वो भी अपने आप को जो है अपने आप को हक पर बताता है। चाहे आप देवबंद में चले जाइए, चाहे बरेली में चले जाइए, आप किसी मसलक में चले जाइए, हर इंसान अपने आप को हक पर बताता है। मामला क्या है? आज हम उससे कहते हैं ऐसा क्यों है, वो कुरान को दिखा देता है, यार कुरान ये कह रहा है। तो हजरात, कहने का मकसद ये है, कुरान को समझना, कुरान को समझना हर एक के बस की नहीं, हर एक के बस की नहीं। तो बात ये आती है कि जब दीन को रब ने कामिल कर दिया तो ज़रूरत क्या हुई? अब बात समझते चलिए हजरात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में फानी से जब आप रुखसत हुए, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, मुख्तसर अंदाज में कहता चलो, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आता है। हजरात, उस वक्त सबके अकीदे मज़बूत थे, आप उनकी इस्लाह फरमाते थे। आपके बाद हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है ज़माना आता है। आप अमीरुल मोमिनीन जब बनते हैं, लोगों को जब आप किसी मसाइल की ज़रूरत पड़ती थी, हज़रत उमर फारूक आज़म को पूछा करते थे। उनके बाद उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन का ज़माना आता है, लोगों को ज़रूरत होती थी, आप उनकी इस्लाह फरमाते थे। किसी चीज़ का मसला
होता था आप उसकी इस्लाह फरमाते थे। उनके बाद हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आता है, मसले की ज़रूरत हुई, चाहे वो ज़मीन का मसला हो, अकायद का मसला हो, मोहब्बत का मसला हो, मसलक का मसला हो, मशरफ का हो, किसी भी मामलात का हो, हजरत ज़रूरत होती आपने उनकी इस्लाह फरमाई। आपके बाद में हजरत हसन हुसैन ने इस्लाह फरमाई। हजरत उस वक्त में जो अपने वक्त के बड़े मुहद्दिस शुमार थे, मुहद्दिसीन थे, जैसे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, और इसके अलावा और सहाबाई किराम और अज़वाज मुताहरात में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यानी जिस मुसलमान को ज़रूरत पड़ती गई हम उनकी इस्लाह करते गए। फिर उसके बाद हजरत हनफी मज़हब बना बहुत बात की बात है, मालिकी मज़हब बना बहुत बात की बात है, शाफ़ी मज़हब बना बहुत बात की बात है, हम हम्बली मज़हब बना बहुत बात की बात है। आखिर ये क्यों बने? वजह हालात ये है, जब इन सहाबाए किराम का ज़माना जब चला गया तो उसके बाद जो है हर इंसान अपने अक्ल फितरत की वजह से जो है रास्ता भटकने लगे, रास्ता छोड़ने लगे। जो रास्ता हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था वो मुसलमान रास्ता तब्दील करते चले गए अपने अक्ल फितरत की वजह से। जो है कोई कैसा अकीदा रखने लगा, कोई कैसा अकीदा रखने लगा। उसी दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नुमान बिन साबित को चुना आपने। उसके बाद जो है आप और अल्लाह ने आपको वो उरूज बख्शा, आपने कुरान और हदीस को यानी समझा और आवाम के सामने, उम्मत मोहम्मदिया के सामने वही पेश किया जो हजरत उमर फारूक आजम ने पेश किया था, जो हजरत मौला अली ने पेश किया था, जो हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पेश किया था, जो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने पेश किया था, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मज़हब पेश किया था वही उमर फारूक, वही हजरत नुमान बिन साबित जिन्हें हम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। यानी कि जब दौर जिस चीज का आया उस वक्त कभी माल की शक्ल में जो है मज़हब तैयार हुआ हमारी इस्लाह के लिए, कभी हनफी शक्ल में जो है मज़हब तैयार हुआ, कभी जो है हम्बली तो कभी शाफी। उससे आगे बढ़िए, तफसीर तो बहुत बड़ी, वक्त कम है, वक्त भी काफी हो चुका है। दुर्द पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरात जब सब कुछ ओके हो गया, क्लियर हो गया कि इसके बाद कोई दूसरा मजहब, दूसरा दीन अब किसी और की जरूरत नहीं, तो इन हजरात ने जब इख्तलाफात बढ़े, अकायद बढ़े, गलत मसलक तैयार, हजरात हम किसको क्या दें, बल्कि शिया मसलक में कम से कम 17 मसलक और फायदा, 17। और जिस तरह से इसकी तशरीह हजरत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की है उनसे बेहतर किसी और ने की ही नहीं। आपको यकीन न हो तो आप उनकी किताब उन्हें तो तालिबीन उठाकर देखिए, उसका मुताला कीजिए। आपने मुकम्मल तौर पे जो है मुख्तसर अंदाज में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 73 फ़िक़ों की उनकी अलामत है, उनकी निशानी, उनके किरदार को जिस तरह से आपने हवाला जिस तरह से आपने इस उम्मत मोहम्मदिया को समझाया किसी और अल्लाह वाले ने समझा। और कोई वली ऐसा नहीं गुजरा जो अपने वक्त का वली कामिल के साथ साथ आलिम दीन ना, अपने वक्त का मुहक्किक ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह। तो हज़रात कहने का मकसद ये है, आज हनफी की ज़रूरत क्यों है, आज मालिकी की ज़रूरत क्यों है, आज शाफी की ज़रूरत क्यों है, आज हम्बली की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उस वक्त में जब कुरान को मखलूक कहा जा रहा था तो हजरत अहमद बिन हम्बल खड़े हुए और आप उस वक्त के बादशाह ने जो हारून रशीद की नस्ल से था, यहाँ तक कि आपके ऊपर थोड़े बरसाए गए,
ہمارا تو حال ہے جنہوں نے 80 کوڑے روز کھائے، کس کی خاطر؟ آپ کی اور ہماری خاطر۔ ہمارا تو حال یہ ہے اگر ہم کسی ایسی جگہ پھنس جائیں اور ایسے معاملات ہمارے سامنے درپیش ہو جائیں تو یار کوڑے کھانے کی تو بات الگ ہے، ہم اپنا نام تک چینج کر دیں گے۔ سوچیے، مسلمان ہیں، اپنا نام چینج کرنے کو تیار ہے، اپنا دھرم چینج کرنے کو تیار ہے، اپنا مذہب چینج کرنے کو تیار ہے۔ ارے مرنا ایک ہی بار تو ہے، بار بار تو ہے۔ تو جب ہم اور آپ جس ہماری سوچ، ارے کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، اور سمجھانے کے طور پہ کہوں، جب امریکہ کے اندر جارج بش کی جب حکومت تھی، ایک دلائل کے طور پہ، ایک جو ہے مثال کے طور پر آپ کو ہم سمجھانے کے لیے، وہاں کی حکومت نے کہا کہ ہندوستان کے جو سکھ برادری کے جو ہے امریکہ میں بہت ہے، کینیڈا کے اندر بہت ہے، اور بڑی بڑی اونچی پوسٹ پر ہیں، وہاں پر جب یہ حکم جاری ہوا سرکار کی طرف سے، پارلیمنٹ سے، بھائی جتنے بھی سکھ برادری کے جو پنجابی ہیں، سردار ہیں، بھائی وہ جو لوگ بڑی بڑی پوسٹ پر فائز ہیں، کوئی فوج میں ہے تو کوئی کسی بینک میں ہے یا کسی اس میں کسی آفس میں ہے، تو بھائی ان کے لیے حکم جاری ہوتا ہے کیونکہ یہاں کا لباس الگ ہے، یہاں کی ٹوپی الگ ہے، یا سب کچھ الگ ہے، اور یہ بھائی کتنی بڑی پگڑی بات میں ہم سب جانتے ہیں۔ ہم تو ذرا سا کپڑا لپیٹتے تھے تو ہمیں گرمی محسوس ہونے لگتی ہے، اور یہ تو اتنا بڑا پگڑی باندھتے وقت پوچھیے مت۔ سرکار، وہاں کی سرکار کہتی ہے کہ بھائی سنو، یہ حکم جاری کیا گیا ہے کہ آپ اپنے دھرم کو فالو کر تو کرو، پر آپ پگڑی باندھ کے نہیں آؤ گے، آپ یہ لمبی لمبی جو آپ یہ چہرے پہ جھاڑ لگائے ہوئے ہو یہ نہیں آؤ گے، اسے کٹوانا پڑے گی، اور یہ جو بال ہیں یہ بھی کٹوانا پڑیں گے، جس طرح سے ہم رہتے ہیں اس طرح سے آپ، یعنی جو لوگ نوکر پیشہ ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں، یہ حکم جاری ہونے کے لیے ہوا۔ حضرات 2003 کی بات ہے، اس کی حکومتی طور پر جب یہ حکم جاری ہوا تو جتنے بھی پنجابی تھے برادری کے سب وہاں اکٹھے ہو کر کے واشنگٹن یعنی کہ وائٹ ہاؤس پہنچ گئے، دھرنے پر بیٹھ گئے، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ آپ کو اپنا جو حکم ہے وہ واپس لینا ہوگا، جو بھائی آپ نے جو یہ قانون بنایا ہے یہ قانون واپس لینا ہوگا۔ حضرات وہ وہاں کے باشندے نہ تھے، وہاں کے رہنے والے نہ تھے، کہاں کے تھے؟ انڈین تھے، ہندوستانی تھے، اور بات کر رہے ہیں وہاں کی حکومت گورنمنٹ کے سامنے، وائٹ ہاؤس کے سامنے، کہ بھائی ایسا کیوں؟ پارلیمنٹ کے سامنے، بھائی یہاں کا آدمی اگر ہندوستان میں گئے تو سمجھ میں آتا یہاں کا رہنے والا ہے، باشندہ ہے، تو سمجھ میں آتا ایک غیر مذہب کا آدمی اور ایک دوسرے